खानदान में डॉक्टर या तुम रहोगी या मैं रहूंगी। इस हसद की बिना पर 20 साला बच्ची को दौरान डिलीवरी जो है मुबैना तौर पर फिल्मी अंदाज में जो है वो किया गया। ये शोहर है और ये ससुर है। एक छोटी बच्ची जिस तरह पाल रहे हैं, आप ये यकीन कीजिएगा कि इस तरह चीखो पुकार कर रही है बिना माँ के कि हमसे देखा नहीं गया। इन्होंने ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹਸਦ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੇ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। 20 ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਕੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮਰਿਆਨ ਆ ਇਹ ਆਪਰੇਟ नहीं कर सकती। अनमरियान कौन है? ये अनमरियान मेरे भाई दी बहू आ। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं। दिल हमारा रोता है, क्या करें हम, क्या करें हम। खानदान में डॉक्टर या तुम रहोगी या मैं रहूंगी। नाज़रीन, इस हसद की बिना पर 20 साला बच्ची को दौरान डिलीवरी जो है मुबैना तौर पर फिल्मी अंदाज में जो है वो किया गया। ये जो मेरे साथ शख्स मौजूद हैं, ये उस बच्ची के ससुराल वाले हैं। ये शोहर है और ये ससुर है। नाज़रीन, एक छोटी बच्ची जिस तरह पाल रहे हैं, आप ये यकीन कीजिएगा कि इस तरह चीखो पुकार कर रही है बिना माँ के कि हमसे देखा नहीं गया। तमाम रुदात क्या है, किस तरह ये वाक़या पेश आया, इनके पास क्या प्रूफ हैं कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने ही सके भाई के बेटे के ऊपर कि उन्होंने हमारी बहू को मुबैना तौर पर डिलीवरी के दौरान जो है वो एक फ़िल्मी अंदाज से प्री प्लान करके जो है वो उसको किया। इनसे तमाम रुदात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਵੱਡਿਓ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਦ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਭੇਜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹਸਦ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੋਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਬੋਰਡ ਬਿਠਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੇ ਲਾਣਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਫ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ ਨੋਰਮਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3 ਦਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। फिर सर ऐसी ज़बरदस्ती तीसरे दिन शाम को लैके गए हाँ। फिर भी साढ़े पीछे आ गया सिविल अस्पताल, उतों चक के लाहौर लै गए हॉस्पिटल। उधर इनका एक डॉक्टर था हसन नवाज, वो इनके प्राइवेट अस्पताल में बैठता है, सरकारी इधर क्यूम अस्पताल में जॉब करता है। और इतवार की सुबह 6 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक ICU वार्ड में हमीद लतीफ़ में बैठता है। उधर काम उसने दिखाया। 20 दिन बच्ची को बेहोश रखा है, 20 दिन उसको होश ही नहीं आने दी। जब होश आती थी हमें तो सारा बाद में इन्फॉर्मेशन मिल गई जो इंक्वायरी के दरमियान भी। जब वो होश आती थी उसको बेहोशी का टीका लगा दिया। इंक्वायरी में उन्होंने दसिया जी है जी अनमरियान आ ये ऑपरेट नहीं कर सकती। अनमरियान कौन है? ये अनमरियान मेरे भाई दी बहू आ। भाई तुहाडा सक्का है? सक्का भाई आ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆ। हाँ जी, हॉस्पिटल ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਚਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ DHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਰਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ।
वजह की सी वजह कोई भी नहीं, डॉक्टर ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੱਸਦ ਹੀ ਬਣਾते, कि सिर्फ डॉक्टर ना बने। सिर्फ डॉक्टर ना बने बस। हमारे मुकाबले में ये डॉक्टर बन रही और टॉपर बन रही थी बच्ची, कॉलेज में टॉपर आ रही थी। इस वजह से उस इस बच्ची की वजह जान से गई। इन्होंने मारा है और साडा कोई क्लैश नहीं है पीछे कोई। आपको पहले नहीं पता था कि हमारे मुझे लेकर ये हसद करते हैं, हमारी फैमिली को लेकर हसद करते हैं? आपको पहले ये इल्म में नहीं था? सर नहीं पहले पता होता तो हम अपनी डॉक्टर मरवानी थी इनसे, हम अपनी बच्ची मरवानी थी अगर पहले पता हो। पहले आपके आपके भाई के साथ कैसे ताल्लुकात थे? सही है बिल्कुल, कोई रंजिश, कोई क्लैश? कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं। दिल में क्या वो ये रख कर सारे बैठे हैं। दिल में क्या रख कर बैठे थे जो आपकी बहू के साथ उन्होंने ये किया? बस वो दिल में ये कुफर था, ये इनने दानिश्ता तौर पे ससद बना थे, ठीक है ना। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं। जैलसी बने ने जैलस किया भी क्यों बना लिया साडे मुकाबले च, डॉक्टर बनती पई साडे आपके मुकाबले। घर का तो बेड़ा गर्क हो। हमारा तो बेड़ा गर्क कर देता। हमारी पिछले साल तो छोटी सी बच्ची है, किस तरह उसको एक ये छोटी बच्ची है, उसकी बेचारी 20 साल की उम्र थी और पिछले साल 22 नवंबर को शादी की है मैंने, 22 नवंबर 2024 को, और साल 11 महीने बाद बच्ची फौत हो गई। दिल कितना को रोता है, दिल जुबान हमारा देता रोता है, आपका। क्या करें हम, क्या करें हम। हमारा दिल नहीं रोता, हम तो रो रो के कमड़े हो गए। हमारे पास इंसाफ नहीं अभी मिला, इंक्वायरी हुई है उनके खिलाफ, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। अभी भी हॉस्पिटल चल रहा है और केस जो है सेक्रेटरी हेल्थ के पास है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास गया हुआ है और पीएमडीसी के पास गया हुआ है, डीसी साहब ने भिजवाया है, उस पर कोई अभी एक्शन नहीं हुआ हमारा। नाज़रीन, ये रोती आंखों में से जो आंसू निकल रहे हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इनके ख़ानदान की जो नस्ल है उसके लिए निकल रहे हैं कि उसकी परवरिश कौन करेगा। माँ एक बेहतरीन दर्शगाह है जिसको पहले ही जो है वो इस दुनिया से जो है वो भेज दिया गया सिर्फ एक हसद की बिना पर। मुझे बताइएगा कि इदारों से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ यार, ये इंक्वायरी तो बिल्कुल बेहतरीन हुई है जी हमारे, हम ये हक में थे और मेरिट पे हुई है, लेकिन अब आगे से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो जिधर कहते हैं हम पैसे लगा के छूट जाएंगे, हम पैसे लगा देते हैं, ठीक है ना। हमें कहते हैं हमारा कर लो जो कुछ करना है आपने, हमने जो भी किया है कर दिया है। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि आपका लाइफ पार्टनर था, जीवन साथी था, आपको नहीं लगा था कि ताया जान जो है वो इस तरह की नेचर रख कर बैठे हुए हैं कि मेरे से मेरी ज़िंदगी छीन लेंगे? नहीं, मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं जाता उधर, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था। कब पता चला? ये ऑपरेशन के बाद डेथ वाले दिन हमें अंदाज़ा हुआ कुछ बातों से। डेथ वाले दिन इस बात से पता लगा कि इनमें इनका कोई भी फर्द हमारे घर नहीं आया, जनाजे पे नहीं आया, जनाजे पे नहीं है? नहीं आया। ना कोई लेडीज आई है, ना ये रेहान आया, ना अनम आई है, ना इनकी और कोई बहू आई है, कोई नहीं आया। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि अभी आपका जो भतीजा है वो अंडर मैट्रिक है, वो और अंडर हॉस्पिटल मैट्रिक चला है। रहा है। संते देख लें जाके, उसके अंडर मैट्रिक है, हॉस्पिटल चला रहा है। ये टिकटॉकों पे लोगों को लूट रहा है, ये भोले भाले लोगों को जिनके बच्चे नहीं ना होते उनको भी लूट रहा है। ये इसका ये हराम के बच्चे दे रहा है, बाहर से सिमन रख रहा है। इसका उसकी आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे ये इल्ज़ाम नहीं है, इसकी ज़िंदा मिसाल है। इसका भाई है छोटा फरहान अली, उसके पास 12 साल हो गए शादी हुई, ना बेटी है ना बेटा है, जाके बेशक उसको बुला लो इधर। हैं। अच्छा, अपने ही घर अपने ही बेटा घर नहीं है, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, लेकिन लोगों को हाँ। वो तजवीज़ कर रहे हैं कि किस तरह औलाद होती है और टिकटॉक पे एक प्लेटफॉर्म बना बैग है। ये भोले भाले लोगों को लूटता है और हराम के बच्चे दे रहा है, सिमन बाहर से रख रहा है, ऑपरेट कर देता है लोगों को, बड़े भोले भाले बना के। पता ही नहीं चलता। उनको नहीं पता चलता, वो कहते दोनों का ऑपरेशन हुआ है, जान के करता है दोनों के ऑपरेशन भी पता ना चले, और बाद सिमन बाहर से रख देता है और बाद में पता चलता है। एक और 2-4 मरीज़ हैं जो बेचारे DNA कराए उन्होंने, वो भी इनके पीछे फिर रहे हैं। अच्छा, लोगों ने डीएनए भी करवाए बाद में? हाँ जी। तो डीएनए से मैच नहीं किया? मैच कितों कहाँ से मैच होने थे, किधर से मैच होने थे? एक इधर एक मेरा इधर हेल्थ ऑफिसर है, उसने बोला एक लेडीज़ आई इनके पास, इन्होंने ना उसके पूछा नहीं तेरा खामद किधर है, उसका खामद था सऊदी अरब। ये इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं ये सके चाचा की जानिब से लगाए जा रहे हाँ जी, हैं हाँ कि मेरा भतीजा जो है एक मुबैना तौर पर हॉस्पिटल चला रहा है और वहाँ जो है वो कंसीव कराए जाते हैं बेबी, वालिदा और वालिद का ऑपरेट किया जाता है, लेकिन मुबैना तौर पर सिमन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के होते हैं। जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद वालिदैन यही समझते हैं कि ये हमारी औलाद है, और 2-3 पार्टीज जो इनके पास क्लाइंट आए थे उन्होंने डीएनए कराए लेकिन वो मैच नहीं हुए। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये इल्ज़ाम इनके चाचा की जानिब से लगाए जा रहे हैं, तो बड़े संगीन इल्ज़ाम है, और इदारे जो हैं वो इस टाइम कहाँ काम कर रहे हैं? CO साहब को, DHO साहब को, हेल्थ वाले सबको पता है, जो भी डॉक्टर इधर है सबको पता है, आप खुद जाके उससे पूछ लेते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर अच्छा, वो मेरी बात बीच में रह गई, वो एक लेडीज आई इनके पास, उसका खामद बाहर था,
इन्होंने पूछा नहीं भी तेरा खामद किधर है, इन्होंने वो सिमन रख दिया। वो बाद में उसका बंदा तो साल हो गया था बाहर गया को, मुझे बताया हेल्थ ऑफिसर ने मुझे बताया, ये वो भी फड्डा बना हुआ है, वो बाहर साल हो गया उसको, बाहर उनके बच्चा कहाँ से हो गया। तो क्या इदारे पैसे लेके चले जाते हैं? अदारे क्या पता नहीं क्या लेते हैं, पैसे ही लेते होंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये है, बारिश है, आपने ज़िंदगी गुजारी है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर आप अपनी बहू को वहाँ क्यों लेकर चले गए? सारे बाद में पता चला है, पहले नहीं पता था। ये तो ये तमाम सूरत हाल है, इन्फॉर्मेशन बाद में मिली हमें सारी। ये तमाम सूरत हाल है कि सके चाचा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है तमाम इदारों से कि अगर ये मामलात हैं, इनमें हकीकत पर मबनी ये इल्ज़ाम है, तो इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करके हॉस्पिटल को सील किया जाए और ये डॉक्टर जो है मुबैना तौर पर जो नाम नहाद डॉक्टर बना हुआ है उसको गिरफ्तार किया जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।